students. Today we discuss about the types of mixture of lesson number 6, composition of matter. So in order to understand the types of mixture, we do one activity. Take 3 beaker. In the first beaker we have to take sand and water. In the second beaker we have to take blue vitriol and water, and in the third beaker we have to take that sand and blue vitriol. So stir the solution well and see what changes we'll observe after stirring the solution. When we stir the first solution, that sand settles at the bottom and the number of phases are seen, that is 2, and types of mixture is a heterogeneous mixture. Then second, we take blue vitriol and water. So blue vitriol, that is copper sulfate, dissolve in a water, and there is a solution of blue vitriol is formed. So here there is a means only single phase is there, and this single phase is present, and number of components means here only one single phase, and type of mixture is the homogeneous mixture. And in the third case, when we take sand and blue vitriol, again 2 phases are seen, and there is a formation of mixture of sand and blue vitriol, and here the mixture is heterogeneous. So on that basis we differentiate mixture into homogeneous and heterogeneous. So before that we study about the phase. तो phase क्या है? The part of matter having uniform composition it's called phase. यानी matter का ये जो part है जिसका composition क्या रहता है? Uniform रहता है, same रहता है, उसे क्या कहते हैं? phase. अब homogeneous solution यानी क्या? When all the components of a mixture form one phase, तो that is called as the homogeneous solution. यानी जो मिक्सचर के सब जो कंपोनेंट्स है वो एक फेज अगर तैयार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? होमोजेनस सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ ब्लू विट्रियोल. देन हेटेरोजेनस सॉल्यूशन व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 और मोर फेज, सो इट्स कॉल्ड एज अ हेटेरोजेनस सॉल्यूशन. यानी इसमें जो कंपोनेंट्स है मिक्सचर के, तो ये एक से ज्यादा फेज में क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, दे आर सेपरेटेड, so it is called as the heterogeneous solution. After that we discuss the types of mixture. Means we already discussed there are 2 main types of solution, that is homogeneous and heterogeneous. Then we discuss about the solution and their types. So for that we do one activity. हमको फिर से क्या करना है? 3 बीकर लेने हैं. Take 3 beakers. अब फर्स्ट बीकर में हम क्या लेने वाले हैं? 10 ग्राम सॉल्ट dissolve in 100 ml of water. Then second beaker में हमें क्या लेना है? 10 ग्राम sawdust dissolve in 100 ml water. And in third we have to take 10 ml milk dissolve in 100 ml of water. इस तरह से 3 सॉल्यूशन क्या हो गए? तैयार हो गए. और उसको क्या करना है? अच्छे से स्टर करना है, उसको मिक्स करना है, और बाद में ये जो 3 बीकर्स है उसको एक लाइन में क्या करना है? हमको रखना है. And then held a vertically place paper means in front of that beaker, and then pass a beam of light on the opposite sides of the beaker and see means that solution, through which solution that beam of light passes. On that basis we differentiate the solution into transparent and opaque. After that we have to also what we have to do, that is filter the solution. हमें उसके बाद में विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन असेंबली हमें क्या करना है? फिल्टर पेपर की मदद से, फनेल की मदद से ये जो सॉल्यूशन है उसको क्या करना है? फिल्टर करना है. सो व्हाट वी ऑब्जर्व नाउ इन फर्स्ट केस, सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्यूशन यानी क्या. तो पहले इसमें हमने क्या लिया? 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर. तो ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो इसमें क्या है? सॉल्यूशन किसे कहेंगे हम? अब दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन. तो इसमें हमने क्या लिया? सॉल्यूशन यानी होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूशन. तो ये सॉल्यूशन में जो मींस दैट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज मोर इट्स कॉल्ड एज द सॉल्वेंट. तो उसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं. यानी जैसे सॉल्यूशन में हमने 2 कंपोनेंट्स लिए हैं, तो एक का अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है दूसरे से, तो उसे क्या कहेंगे? solvent, and other component which is taken in less amount, so that is called as the
क्या करेंगे उसे सोल्यूट। जैसे शुगर सोल्यूशन है, अब ये जो शुगर है, शुगर क्या हो गया सोल्यूट, और सॉल्वेंट क्या हो गया वाटर। तो सोल्यूट हम कम लेते हैं और सॉल्वेंट क्या लेते हैं ज़्यादा। सो देयर इज अ मीन्स सोल्यूशन यानी क्या है, देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सो दैट फॉर्म्स अ solution. Or when solute dissolve in solvent, that process is also called as the dissolution. So that in first case, जब हमने क्या लिया बीकर में वाटर लिया और क्या लिया 10 ग्राम साल्ट, तो उससे जो सॉल्यूशन तैयार होगा, ठीक है, तो ये कौन सा सॉल्यूशन तैयार होगा, होमोजेनियस सॉल्यूशन। और इसमें अगर हम बीम ऑफ लाइट पास करते हैं तो क्या होगा, इट पास थ्रू द सॉल्यूशन, सो दैट सॉल्यूशन इज क्या है ट्रांसपेरेंट है। और इसमें फेज क्या रहेंगी, ओनली सिंगल फेज इज देयर। देन अगेन देयर आर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मींस लिक्विड इन लिक्विड, जैसे ये इसका जो एग्जांपल है दैट इज अल्कोहल डिसॉल्विंग वाटर। देन गैस इन गैस, द एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस that is the air is the mixture of gases। solid in solid example is the alloy, for example stainless steel, bronze। gas in liquid, that is CO2 gas dissolved in a water। then solid in liquid and salt dissolving water। so there are different types of solution। after that we discuss about the suspension। अब suspension क्या है, सेकंड बीकर में हमने क्या लिया सॉडस्ट, 10 ग्राम सॉडस्ट डिसॉल्विंग 100 ml ऑफ वाटर। तो इससे जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसे क्या कहते हैं सस्पेंशन। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड एंड अ सॉलिड इज कॉल्ड अ सस्पेंशन। तो डायमीटर ऑफ अ सॉलिड पार्टिकल इन सस्पेंशन लार्जर देन 10⁻⁻⁴ मीटर, एंड व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू दिस सॉल्यूशन, तो क्या होगा दैट बीम ऑफ लाइट जो है ये पास होगा क्या नहीं, यानी इसमें सॉडस्ट जो है सॉडस्ट क्या होंगी सेटल एट द बॉटम, लेकिन सॉल्यूशन क्लियर सॉल्यूशन रहेगा, इसलिए बीम ऑफ लाइट क्या होगा पास थ्रू द सॉल्यूशन। यानी इसमें भी सॉल्यूशन में बीम ऑफ लाइट पास होता है, इसलिए क्या है ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। और अगर इसको हम फिल्टर करते हैं तो क्या होगा, देयर इज अ फिल्ट्रेशन, मीन्स टू कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड, सॉडस्ट सेपरेट फ्रॉम द वाटर। देन वी डिस्कस अबाउट द कोलॉइड। अब ये कोलॉइड हमने थर्ड बीकर में क्या लिया था, मिल्क एंड वाटर। तो ये जो मिक्सचर है हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विथ अ नेकेड आई, यानी सस्पेंशन और कोलॉइड में क्या फर्क है, तो सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स रहते हैं उसकी जो साइज है उसके साइज से कोलॉइड के जो पार्टिकल्स रहते हैं मिक्सचर के उसकी साइज क्या रहती है कम रहती है। और ये जो पार्टिकल्स हैं हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। और ये जो डायमीटर है कोलाइडल फॉर्म का, तो ये कितना रहता है 10⁻⁵ मीटर। तो मिल्क क्या है कोलाइड है, क्योंकि मिल्क में जो फैट के पार्टिकल्स रहते हैं, प्रोटीन्स के पार्टिकल्स रहते हैं, तो ये जो पार्टिकल्स है दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मिल्क और इन द सॉल्यूशन इन विच इट इज प्रेजेंट। अगेन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइड, दैट इज सॉलिड इन गैस, फॉर एग्जांपल स्मोक, एंड लिक्विड इन गैस दैट इज अ फॉग। तो कोलाइड में अगर हम बीम ऑफ लाइट पास करते हैं तो क्या होगा, मीन्स पार्टली सॉल्यूशन जो है उसमें कुछ जो पार्टिकल्स रहेंगे वो क्या करेंगे मीन्स थ्रू विच सम लाइट कैन पास, एंड सम जो पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं स्कैटर्ड होते हैं, इसके कारण लाइट पास नहीं होता। सो द सॉल्यूशन इज नॉट ट्रांसपेरेंट, इट इज opaque। ओके, सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन।